Hello and welcome to this podcast, Stories of Change. Today we have a special guest with us, Vivek Singh, who has been working in the development sector for almost 15 years now. He has donned various hats, right from working with grassroots level organizations to large donors, whether it is Azim Premji Foundation, Tata Trusts. Now he works with various nonprofits as a consultant on a variety of roles, right from proposal writing to research, MIS development, program management, and so on. Vivek has started an organization called Avisi. Avisi focuses on working with grassroots level organizations. So thank you so much, Vivek, इस podcast में आने के लिए. Thank you, Simit. Thank you for inviting me for this podcast. तो प्रपोजल राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी एनजीओ के लिए या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. This is like a most crucial thing that any organization needs to have whenever they are approaching any potential corporate donor or an individual donor as well, right? It kind of gives a sense of the clarity that the organization has, what is the kind of impact that an organization has had in the past, and what is it that they actually want to do. So for any donor or any investor, this gives like an overall sense of where the organization stands today. So today in this podcast we are going to cover things about proposal writing. What is it that a good proposal entails, what are the typical mistakes that organizations often make when they are writing a proposal, and what are the most important things that a good proposal should have, and also what are the things that a donor generally looks at when they are reviewing proposal. So Vivek has been working with variety of organizations in the development space. He has worked on the receiving side, which is on the side of the NGOs, and at the same time he has also worked on the donor side. So he has like the best of kind of both worlds. So Vivek, can you like give us a sense of what a good proposal entails and why proposal writing is so crucial for any organization? मेरा जो अनुभव रहा है, अगर हम देखें पूरे प्रपोजल राइटिंग को, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में दो तरीके से हमें किसी भी प्रपोजल राइटिंग कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए. एक वो जो हम कोई नया कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, एकदम इनिशियल या बडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम नए डोनर के पास जाते हैं या इंडिविजुअल के पास जाते हैं. और दूसरा वो जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हम अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं और हम बिग डोनर एजेंसीज के पास जाते हैं. तो इन केसेस में मुझे लगता है कि प्रपोजल को इन डायमेंशंस में देखना चाहिए. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को प्रपोजल लिखती है तो उसमें क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए. एक अच्छा प्रपोजल क्या बताएगा? एक अच्छा प्रपोजल ये बताएगा कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी मेरा इनिशिएटिव है वो क्या है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है. जो भी उस प्रपोजल को पढ़े एटलीस्ट उसको ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या चीज प्रूफ करना चाहती है, क्या चीजें एक्चुअल ग्राउंड में करनी चाहती हैं. इसके अलावा ये भी पता करना चाहेगा कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज कर रहा है उसकी कैपेसिटी है उस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट या इम्प्लीमेंटेशन को करने की या नहीं. ये भी देखना चाहेगा उस प्रपोजल में कि क्या उसके पास कोई प्लानिंग है, सिस्टमैटिकली थॉटफुल प्लानिंग है कि नहीं है, जिससे कि जो वो प्रपोज कर रहा है वो कर पाएगा भी कि नहीं. ये ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छा प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशन को ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के को अच्छे से या रिप्रेजेंट कर सके, एक्सप्लेन कर सके किसी को भी कि क्यों ये काम कर रहे हैं. तो मैं अगर आपको पूछूं कि what would be those 5 most important things in a proposal that should be there, like what would you say? तो सबसे पहला मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वैल्यू से रिलेटेड एक स्टोरी होनी चाहिए. मतलब जब भी हम किसी प्रपोजल को किसी डोनर या किसी को भी देते हैं, किसी के सामने हम प्रेजेंट करते हैं, तो एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी और पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसकी जर्नी को जरूर बताए. दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. एक्सपीरियंस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने अभी तक एज ए ऑर्गेनाइजेशन जितने भी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या जो भी कंपोनेंट इंप्लीमेंट किए हैं,
उस चीज को करने का उसका कितने सालों से वो करता आ रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऑर्गेनोग्राम क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, गवर्नेंस सिस्टम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिटी में कितना प्रेजेंस है, क्या क्या इम्पैक्ट चीजें हो चुकी हैं। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर या खाका जिसको है, जो काफी जरूरी होता है किसी भी एजेंसी या किसी भी पीपल या किसी भी डोनर एजेंसी को समझने के लिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ढांचा क्या है। एक और पहलू है जो कि मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, यानी कि उसका मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका थ्योरी ऑफ चेंज किस चीज पे विश्वास करती है वो क्या है, उसका अप्रोच क्या है ग्राउंड में काम करने का, वो क्या सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज को प्लान करके काम करती है या बस ऐसे ही रैंडमली कोई चीज आ गया और इस वजह से प्रोजेक्ट करती है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट लगा रही है कि नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी के लिए भी जानना काफी जरूरी होता है। एक और पहलू है जब हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के बारे में या प्रपोज करते हैं, वो ये है कि हमारा फ्रेमवर्क क्या है या हमारा प्लानिंग क्या है, जो भी चीजें हम प्रपोज करें हम किस तरीके से इसको ग्राउंड में मटेरियलाइज होता हुआ देखना चाहते हैं और हमें किस तरीके की रिसोर्स की जरूरत है। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि जनरली कि जब हम कोई प्रपोजल लिखते हैं या किसी को देते हैं तो हम ये सिर्फ मॉनेटरी रिसोर्स की बात करते हैं कि भाई हमारा बजट ये है और हमें इतने पैसे की जरूरत है और ताकि हम ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन सिर्फ मॉनेटरी की जरूरत नहीं है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स क्या हो सकता है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, उसके पहलू को भी ध्यान देना होता है। इसमें कैसे हम अपनी टीम का कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे उस पहलू को भी ध्यान रखना होता है। तो इन सारे एस्पेक्ट को अगर हम एक प्रपोजल में इन्वॉल्व करते हैं तो काफी इम्पैक्टफुल वो प्रपोजल होता है। तो मेरा इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल यही था कि ये आपने जो जो चीजें बताई ये काफी स्पेशलाइज चीजें हैं, राइट? और ये सब जानने के लिए भले वो है चीज इम्पैक्ट असेसमेंट करने का या रिस्क असेसमेंट करने का फॉर एग्जांपल, या एमआईएस बनाने का या थियरी ऑफ चेंज, तो ये कई सारे जो ग्रास रूट लेवल की स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके लिए ये सब चीजें तो कई लोगों के लिए तो ये तो सुनी भी नहीं होगी, या अगर अगर इसके बारे में पता भी होगा तो उनको ये नहीं पता होगा कि इसे करना कैसे है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मतलब सुनने के लिए तो अच्छा लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बट क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये करने की कैपेसिटी है? और अगर नहीं है तो इसको कैसे किया जाए? बिकॉज ये एक थोड़ा सा चिकन एंड एग वाला सिचुएशन हो गया है, राइट? कि आपको अगर किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करना है ये सारी चीजों करने के लिए, प्रपोजल अच्छे से लिखने के लिए, तो आपको रिसोर्सेस स्पेंड करने होंगे, ठीक है? और चूंकि हमारे पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए वो फंड रेज करना चाह रही है, राइट? इसीलिए वो प्रपोजल लिखना चाह रही है। तो ये कैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर सकती है? सुमित, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये इस पे मैं भी काफी सोचता रहा हूँ। और आपने सही कहा है कि ये चिकन और एग वाला सिचुएशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखती है कि प्रपोजल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटेड और हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस को एक कॉस्ट की तरह ना देख के एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। ये उसी तरीके का है कि जैसे जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए एक ऑफिस क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो वो कॉस्ट तो उसमें इम्प्लाइड रहता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो आपको देखने को मिलता है इम्पैक्ट, वो किस तरीके से दिखता है कि आपकी एक विजिबिलिटी बढ़ती है। तो इसी तरह प्रपोजल राइटिंग को, जो कि जनरली छोटी ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उतना महत्व नहीं देती हैं, और वो इसलिए भी नहीं देती हैं क्योंकि या तो उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग या क्या कह सकते हो कि एक्सपोजर नहीं होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रपोजल इज। और आज के कंटेक्स्ट में
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है जब हम आफ्टर कोविड का सिचुएशन आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से हो रहा है। आफ्टर 2014 जब से CSR अमेंडमेंट हुआ है और गिवन द करंट कंटेक्स्ट, आजकल जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेडिशनली जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव नाउ बिकम अ वेरी एक्टिव रोल प्लेयर आप कह सकते हो। वो उनको पता है कि वो क्या कर रही हैं, और इस कंटेक्स्ट में होता क्या है कि नाउ दे वांट टू मेक अ पार्टनरशिप विद द ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको एक्टिव पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रेजेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रपोजल आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, एक अच्छा प्रपोजल वो अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली प्लान करना चाहिए अपने प्रपोजल राइटिंग एस्पेक्ट को भी, और उन्हें मल्टीपल जगह पे प्रपोजल सेंड करते रहना चाहिए ताकि उनका चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़े। तो इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसमें डेवलप करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से उन वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, मतलब वो आपके पास क्यों आते हैं, कि क्या वो खुद क्यों नहीं कर पाते? जनरली मोस्ट फोकस होती है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोग्राम लाने में, और ज़्यादातर उनकी इंटरनल कैपेसिटी भी नहीं होती है कि वो प्रपोजल राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकें। होता क्या है कि जब एक प्रोजेक्ट एंड होता है तब फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के प्रपोजल राइटिंग में। तो ये सही बात है कि गिवन द कंटेक्स्ट, जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज में जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास ये कैपेसिटी कम होती है कि वो एक अच्छा इम्पैक्टफुल प्रपोजल लिख सकें। तो फॉर इंस्टेंस हम अवीसी में यही करते हैं, जो मेरी संस्था है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका प्रोग्राम या काफ़ी इम्पैक्टफुल काम रहा हो, और हम उनको सपोर्ट करते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिखा जा सके। तो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप अपने काम पे ध्यान दो, और ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हम आपके साथ मिलके अच्छे से इम्पैक्टफुल तरीके से एक प्रपोजल डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशन का को बेटर चांस मिलता है अपने काम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेने पे। टिपिकली जब आपके पास, मतलब आप चूंकि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने चूंकि काफी सारे डोनर एजेंसीज में भी काम करा है, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू सी दैट ऑर्गेनाइजेशंस डू व्हेन दे राइट प्रपोजल्स? कैन यू शेयर योर थॉट्स ऑन दैट? तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजल जो स्पेशली ये ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करती है, एक सबसे कॉमन थ्रेड जो दिखता है वो ये दिखता है कि प्रपोजल जनरली वेल रिसर्च्ड नहीं होता है। मतलब जो हम बैकग्राउंड देते हैं किसी भी चीज़ों का, इससे स्किल्स है जहाँ पे आपको, जब भी हम किसी को प्रपोज करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हमें डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ये आइडिया नहीं आता है कि जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जनरली ये मिस आउट कर दे जाती हैं। दूसरा जो लिमिटेशन प्रपोजल का होता है, वो जनरली कई प्रपोजल ऐसे आते हैं, मैक्सिमम प्रपोजल इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, rather than providing a practical या to do kind of a objective तरीके से नहीं लिखे जाते हैं। वो काफ़ी इमोशनल तरीके के प्रपोजल लिखती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और जो डोनर एजेंसी होती है वो समझ नहीं पाती है कि वेदर ये प्रपोजल चैरिटी में देना चाहिए या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन की रूप में देनी चाहिए। तो वो एक क्लियर स्टार्क डिफरेंस देखना होता है। तीसरा, अगर हम कहें कि जो कई लिमिटेशन दिखती हैं, और ये काफ़ी फ्रीक्वेंट रहता है, कि वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। उसमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई लॉजिकल फ्लो नहीं दिखता है, लॉजिकली अरेंज मटेरियल नहीं इसमें आता है, कहीं का बात कहीं पे जोड़ी जाती है। और क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रपोजल, क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास वो लिमिट रहती है, वो क्यूरेटेड नहीं होता है कि डोनर एजेंसी को क्या रिक्वायरमेंट है। वो स्टैंडर्ड एक प्रपोजल जो कि शायद एज ओल्ड पुराना रहता है, वो हर जगह वो अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है ना। तो इस वजह से उसमें कोई जनरलिस्टिक टाइप के प्रपोजल रहते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है।
एक और इंफॉर्मेशन लैक जो मैं देखता हूँ वो है कि कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है जो भी वो प्रपोज कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कहीं मेंशन नहीं होता है। वो लिखते तो हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस रहा है ये सब काम करने पे, लेकिन अभी के करंट कंटेक्स्ट में उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैसे वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा, वो मिस्ड आउट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक और बात जो मैं काफी स्टार्कली देता हूँ कि प्रपोजल जब भी सबमिट किया जाता है उसमें एक टाइम लिमिटेशन होता है कि 3 साल या 4 साल या 5 साल तक हम ये करेंगे, लेकिन कभी भी ये मेंशन नहीं होता है कि ये 3 साल के बाद ये प्रोजेक्ट का क्या होने वाला रहता है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी पाथ उसमें मेंशन नहीं रहती है, या फ्यूचर पाथ क्या होगा आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पीरियड एंड्स। तो वो सस्टेनेबिलिटी पार्ट को जनरली ऑर्गेनाइजेशन मिस आउट कर जाती है टोटली, कि ये आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पीरियड वो क्या होगा, जो कि एक डाउट देता है, डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि डोनर जो है एज ए इन्वेस्टमेंट इन सारी एस्पेक्ट को देखता है, तो उसके लिए वो विजुअलाइज कर पाना कि भाई आगे क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, वो थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है, वो प्रपोजल से नहीं निकल पाता है। और कुछ छोटे पहलू हैं जो कि है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि रिस्क असेसमेंट कैसे कर रहे हो, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, वो प्रपोजल का पार्ट नहीं होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कुछ भी नहीं दिया रहता है, बिकॉज वी ट्रीट दिस, जनरली डोनर जो है वो ट्रीट करता है ग्रांट को एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उसका रिटर्न क्या आना है वो हम ठीक से नरेट नहीं कर पाते हैं, प्रपोजल का पार्ट नहीं बना पाते हैं। So Vivek, just to clarify, when you say investment, you don't mean like financial returns, right? You mean returns in terms of, you know, community का जो impact है या overall social impact. That's the return that you're talking about, right? हाँ हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं कि सोशल इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या है, जनरली एसआरआई इसको हमारी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो चूंकि इट्स अ काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, इसका मॉनेटरी रिटर्न की बात हम नहीं करते हैं, इतना ज्यादा सोशल रिटर्न की बात करते हैं, तो उसको हम अच्छे से प्रपोजल का हिस्सा नहीं बना पाते हैं, जिससे डोनर के लिए विजुअलाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि भाई जो भी हम ये ग्रांट देंगे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। राइट राइट। तो टिपिकली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रपोजल भेजती है तो उसके साथ भी जो है वो कुछ कुछ बाकी चीजें भी जानी चाहिए, जैसे आपने अभी जिक्र किया उसका कि एनुअल रिपोर्ट हो, तो उसके अलावा प्रपोजल के अलावा व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड गो अलोंग विद अ प्रपोजल, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रपोजल के साथ जानी चाहिए? मुझे लगता है कि प्रपोजल तो एक एस्पेक्ट महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, जब भी आप किसी भी डोनर एजेंसी या किसी को भी अप्रोच करते हो। दूसरी जो मुझे क्रूशियल फैक्ट लगता है कि प्रपोजल तो एक लेंदी डॉक्यूमेंट होता है, या एनुअल रिपोर्ट एक लेंदी डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट पिच डेक ज़रूर होना चाहिए, जो कि काफ़ी इफेक्टिव तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी को किसी को भी अच्छे तरीके से बता सकता है। अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम कर रहा है उसका एक शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जो शॉर्ट वीडियोस होता है उसके इम्पैक्ट को दिखाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पहलू हो जाता है। तीसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हमें अप फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रपोजल भेजता है तो जो अगर उसने कोई फील्ड में काम किया है उसके इम्पैक्ट रिपोर्ट, या फिर किसी ने एक्सटर्नल इवैल्यूएशन किया है तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट, शॉर्ट में बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें एक और अगर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का एक अच्छा इम्प्रिंट जरूर भेजना चाहिए, जिससे एक डोनर एजेंसी या कोई भी प्रपोजल को अगर देख रहा है तो उसके पास एक अच्छा इमेज बनने की कोशिश होगा, वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहे, अगर वो कोई भी चीज़ आपके बारे में वेल एक्सप्लोर करना चाहे तो वो उसी डॉक्यूमेंट फाइल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। Thank you so much, Vivek, for being on the podcast. I think आपने जो जो सुझाव दिए हैं, जो जो आपने बताया है, वो काफी इंसाइटफुल है और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये काफी काम करेगा। एंड आई होप कि ये सेक्टर इसी तरह से बढ़ते रहे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अपनी सोसाइटी में, जो कि हमने कोविड के टाइम में स्पेशली देखा, राइट? कि एट द एंड ऑफ द डे भले लार्ज कॉर्पोरेट्स हो या भले
लार्ज गवर्नमेंट मशीनरी हो, बट जब वैक्सीन देने की बारी आती है, जब लोगों को कन्विंस करने की बारी आती है, तो तभी हमें उसी ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना पड़ा था, राइट। जिसको हम मतलब कहते हैं कि हाँ वो तैयार नहीं है या उनके काफी सारे चैलेंजेस है, बट वो सबसे जब जरूरी टाइम था, when it was the most crucial time, it was these organizations that actually stood up to the challenge, and they were the ones who kind of made sure that everything happened smoothly. So I think in organizations का जो ground based organizations है, इनका काफी महत्वपूर्ण रोल है, and I think it is crucial for these organizations to upskill themselves, to build their own capacities, to be able to make a really strong impact and to showcase that impact that they have been able to make over the last few decades. So yeah, thank you so much for sharing your thoughts, Vivek. It was wonderful to speak to you. Thank you, Samir. Thank you.